So welcome to the sixth webinar, KSP's webinar series. This is the sixth event we are doing since the last 2 months. And my name is Ali Khwaja, based in London. And we're pleased to have Dr. Kamal Munir from University of Cambridge and Salman Khalid, who's the director at BNP Paribas from UAE. पिछले 2 महीनों में मैं उर्दू में बोलने की कोशिश करूंगा बिकॉज लॉट ऑफ द पीपल प्रेफर दैट पिछले 2 महीने से खास तौर पे जब से पावर सेक्टर पे आईपीपी की रिपोर्ट पब्लिश हुई है द पावर सेक्टर हैज बिकम अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ वेल डिस्कस्ड टॉपिक इन पाकिस्तान एंड आई थिंक इन दिस सब्जेक्ट Dr. Kamal Munir and Salman wrote a paper which is almost a seminal study in this area, and you guys have been writing on this for the last 10 years, much earlier than what other people when other people have covered it. And the thing that I liked really a lot in your paper was that it gave a really good framework, a historical narrative of why have we ended up where we are right now, and it gives a very good description of the causes of issues such as the circular debt, which we in the financial markets hear a lot about. So I'm very delighted to have you guys here, and thank you for taking your time. And so I would love to, if you can use your time to give us some framework and historical narrative of what are the causes of this issue, and could also give some opinion on the IPP report which has come out, and what do you think could be the solution for the crisis which we are facing in the power sector. The format of this webinar would be that I'll just pass it on to you, and then if Kamal Saab and Salman Saab, you can present for 30 to 40 minutes, and then we will open up for Q&A. We have around 60 people dialed in right now. The format for Q&A would be that it would be great if you can raise your hands and then write your question once the presentation is over, and then I'll just moderate those questions. So over to you, Kamal Saab and Salman. All right. Okay. All right. Thank you very much, Asad. Ali, can you hear me? Okay. I can. Okay. All right. Okay. So, would you prefer me to speak in English or Urdu? Urdu would be better if you can. Urdu would be better. Excellent. हाँ तो बहुत ही अच्छा है फिर तो उर्दू में ही फिर जो है वो बात करते हैं ताकि सही तरह बात हो सके और समझ भी सबको जो है वो आ जाए. और तो ये सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पे जो है वो मदऊ करने का. और ये आपने जैसे कहा ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में हम 10 साल से ज्यादा जो है वो हो गया हमें लिखते हुए. सलमान और मैं जो है 15 साल पहले मिले थे और लम्स में और तब से जो है वो हम इसके बारे में बात भी कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं. लेकिन और ये ऐसा इशू नहीं है कि हम लिख रहे हैं या किसी को पता नहीं है. मतलब ये चीजें जो हैं वो इमरान खान साहब से भी डिस्कस कर चुके हैं हम. असद उमर साहब जो आपने पेपर जिनका जिक्र किया था, असद उमर साहब ने उसके ऊपर हमें डिटेल जो है वो फीडबैक और कमेंट्स जो हैं वो भी दिए थे. सो आई मीन दिस इज नॉट तो वो जो हम 15 साल से जो है जो बात कर रहे हैं और जो लिख रहे हैं उसका जो नतीजा है वो ये जो आईपीपी की रिपोर्ट है जिसका आपने जिक्र किया वो कोई हमारे लिए कोई बहुत ताज्जुब वाली बात नहीं है कि उसके अंदर जो चीजें जो है वो ठीक है. मतलब ये कि उसके अंदर उनके पास भी कोई जादू की छड़ी भी नहीं है, कोई मैजिक वॉन्ड भी नहीं है, कोई भी नहीं. मतलब उन्होंने बीच में उन्होंने बेचारों ने ये भी लिखा हुआ है कि हमने पैसे मांगे थे थोड़े से इस स्टडी को जो है वो बेहतर तरीके से करने के, वो हुकूमत ने हमें वो भी नहीं दिए. तो उनके पास ज्यादा जो है अगर कोई रिसोर्सेज होती तो शायद वो बेहतर जो है वो स्टडी. लेकिन अगर हम 1/3 भी उसका जो है वो मान लें तो फिर भी मतलब यहाँ काफी सीरियस इश्यूज हैं. और ये वो इश्यूज हैं जिसके बारे में सलमान और मैं जो है वो काफी अरसे से लिख रहे हैं. ये जिस पेपर का आपने जिक्र किया, so what I'm going to do is I'm going to share my screen so that you can see everyone can see this. Can you see the screen, my screen now? You can. ठीक है. तो ये वो पेपर था, ये लाहौर जर्नल इकोनॉमिक्स में जो है वो हमने छापा था क्योंकि उससे पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी. तो वो कॉन्फ्रेंस के पेपर जो हैं वो उन्होंने छापे थे और वो कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे वो भी लोग थे जिन्होंने ये पॉलिसी जो है वो बनाई थी जिनको हम जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे. तो उनको अच्छा भी नहीं लगा कि हम जो है वो उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ओवर द पास्ट 10 years और सो वी हैव बीन विंडिकेटेड. जो हमारे इसके बारे में जो है वो एतराजात थे कि ये पॉलिसी जो है वो किस तरह होनी चाहिए. और हम ये नहीं कह रहे कि ये सारा कुछ जो है वो नैब को हैंडल करना चाहिए. हम तो ये कह रहे हैं कि देखें
ये गवर्नेंस इशू है या पॉलिसी इशू है। और इस पेपर के अंदर हम यही कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस इश्यूज की कोई कमी नहीं है, जहाँ पे इतनी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हों, जहाँ पे सारा जो है वो ये स्टेट की जो है वो ओवरसाइट बहुत कम हो और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो वीक हो, वहाँ पे गवर्नेंस इश्यूज के बहुत सारे इम्कानात होते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उससे पहले आपको पॉलिसी जो है उसकी तरफ भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। ये एक और हमने ये आप देख लें 10 साल पहले जो है वो एक आर्टिकल लिखा था सर्कुलर डेट के ऊपर, और जब ये हमने लिखा था तो बहुत सारे लोगों ने हमें जो है वो लिखा उसके बाद, इंक्लूडिंग आई रिमेम्बर सरताज अजीज साहब ने भी जो है वो कहा कि मैं तो ये 90s से जो है वो कह रहा था कि ये पॉलिसी जो है वो इस तरह नहीं बननी चाहिए थी ये वो। लेकिन बहरहाल 94 में बेनजीर भुट्टो थी जिनके ज़माने में ये पॉलिसी साइन हुई थी 1994 की, हबको जो इर्द गिर्द पॉलिसी बनी थी। तो उसके बाद मुतअद्दिद हुकूमतें आई, सब ने तकरीबन जो है वो वही पॉलिसी अभी तक फॉलो की है, कोई ड्रामेटिक उसके अंदर स्टेप जो है वो नहीं लिया गया। और yes, I mean, so now after the publication of this IPP report, there is a lot of heat. वो पहले भी जो है वो there has been heat that has built up, or but it tends to go away and it will probably go away once again. Yeah. Again, this is the article that we recently wrote, Salman and I. इसके नीचे जो है अगर हम जाएं तो सलमान की भी तस्वीर, so which was invited by the Dawn people. उसके अंदर हमने फिर यही कहा था कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके आपके जो implications हैं वो सारी इकोनॉमी के लिए हैं। और we have seen multiple studies जिनका जो कहते हैं जी कि 37% हमारा इंडस्ट्रियल लॉस हो गया है बिकॉज ऑफ the energy policy, because of the power sector issues. कोई कहते हैं उससे ज्यादा, कोई कहते हैं उससे कम, लेकिन I think intuitively we all know that this is sort of amongst the bedrock of issues. Yeah. और ये हम जो है वो उसके अंदर जो है वो हम कह रहे थे कि there are some myths that many previous governments have been peddling, that basically need to be sort of demolished. और एक सबसे बड़ी मिथ उसके अंदर ये है कि ये एनर्जी इशू इसलिए है कि बिजली चोरी होती है वहां पे, and this is something that we have been sort of essentially arguing against, कि that may be an issue and this is one of the many sort of issues in Pakistan. बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इस तरह का जो है वो इशू होता है, और बहुत सारों से तो बेहतर ही है पाकिस्तान की सिचुएशन अगर आप कंपेयर करें मुल्कों के साथ, लेकिन दैट इज नॉट द प्राइमरी इशू। प्राइमरी, क्योंकि एक अगर आप नेसेसिटी जो है, जो हर बंदे को चाहिए बिजली, उसकी आप कीमत बढ़ाते जाएंगे तो द इंसेंटिव टू स्टील इज एक्चुअली गोइंग अप। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम कहते हैं वो तो ये होना चाहिए ना कि बिजली की कीमत हम किसी तरह जो है वो नीचे लाएं। और ये रिपोर्ट जो है वो बड़ा साफ साफ कहती है कि इस पूरे रीजन के अंदर सबसे ज्यादा जो कीमत है बिजली की वो पाकिस्तान के अंदर है, बांग्लादेश से डबल है पाकिस्तान के अंदर जो है वो कीमत। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो साफ साफ उन्होंने नंबर्स भी दिए हुए हैं, उन्होंने सारा कुछ जो है वो दिया हुआ, ठीक है। चलें वो भी तो व्हाई, हाउ डिड वी एंड अप इन दिस सिचुएशन जहां पे हम सबसे महंगी बिजली जो है वो दे रहे हैं, उसमें भी जो है वो हमें शॉर्टफॉल होती है, उसमें भी सर्कुलर डेट जो है वो बिल्डअप हो जाता है, उसमें भी ये सारी चीजें जो है हो जाती हैं। तो हम ये कहते हैं कि यहां से आप 1994 से शुरू करें, ठीक है, जब ये आपने पॉलिसी बनाई अराउंड हबको, ठीक है, उस वक्त I remember Hazel O'Leary was the US Energy Secretary and she went on record saying this is the best energy policy in the whole world. Okay? And yes, I mean, so if you were an investor, this was the best policy you could get. And this is something that I've also discussed with my colleagues here at Cambridge who advise the government on electricity generation and policies and privatization and sort of all these issues. They had never seen a policy like this, right? When this came out. बल्कि वो जो डील थी जो हबको की हुई थी जिसके इर्द गिर्द ये सारी पॉलिसी बनी थी, दैट वाज हेल्ड एज डील ऑफ द ईयर एंड देन डील ऑफ द डेकेड बाय यूरोमनी sort of magazine and so forth. तो उसी पॉलिसी के अंदर actually Hazel O'Leary then flew to Pakistan with a plane full of US prospective investors, कोई 80 के करीब इन्वेस्टर जो हैं वो आए थे, and we quickly contracted 19 IPPs for about 3,400 megawatts against a projected shortfall of about 1,000 to 1,500 megawatts. तो हमने उसी वक्त जो है वो एक्सेस कैपेसिटी शुरू। अच्छा, वो डील थी क्या?
आपने एक पॉलिसी बनाई है जिसके तहत आप प्राइवेटाइज करेंगे अपना एनर्जी सेक्टर, ठीक है। अब वो पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी ये है जी कि इन्वेस्टर्स वर टू बी प्रोवाइडेड अ यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड सॉर्ट ऑफ आईआरआर ऑफ 15 to 18% आफ्टर कवरिंग फॉर ऑपरेशनल कॉस्ट्स बैक्ड बाय सॉवरेन गारंटीज ऑफ द, क्या आपका गारंटीड रिटर्न है 18% डॉलर्स के अंदर, और उसके अंदर भी आप रिस्क नहीं ले रहे, वो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी है वहां पे, ठीक है। अब इस तरह की डील आपको जो है वो कहां पे, उसके साथ दे आर आल्सो अलाउइंग फॉर 80-20 डेट इक्विटी रेशियोज, सो यू ओनली हैव टू पुट अप 20% ऑफ द कैपिटल, सो 20% इज योर equity, और फिर you will get monthly payments of which will include a capacity payment and an energy payment, ठीक है। अच्छा, capacity payment में basically that will cover all fixed costs, that will cover all your debt financing, ठीक है, because 80% is debt, तो वो debt भी finance जो है वो हुकूमत कर रही। इन्वेस्टर का equity return भी उसके अंदर जो guaranteed है वो भी होगा। पेमेंट जो है वो इररिस्पेक्टिव होगी कि वो आईपीपी से आप जो है वो बिजली उठा रहे हैं या नहीं हो रही, डिस्पैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ऑफ टेकर जो है, जो वापडा, पेपको, केईएससी वगैरह, दे वर कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लाइज्ड और फॉर रीपेइंग द डेट टेकन टू फाइनेंस 80% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ऑब्वियसली अब इस तरह की जो पॉलिसी है जिसके अंदर रिस्क कोई नहीं है, आपके डेट भी जो है वो दे रहे हैं, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट जो आपकी मेंटेनेंस जो है वो भी वो दे रहे हैं, सारा कुछ जो है वो हुकूमत कवर कर रही है, प्लस आपको गारंटीड रिटर्न इक्विटी के ऊपर अपना 18% डॉलर्स के अंदर मिल रहा है, रिगार्डलेस कि आप डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, उसमें आप मिल रहा है। तो इसको कहते हैं कि फ्यूचर जनरेशंस को मॉर्गेज करने वाली पॉलिसी, ठीक है। तो आपने क्योंकि 25 साल का जो है वो उनके साथ डील साइन कर दी। ऑब्वियसली इफ आई वाज एन इन्वेस्टर, आई हैड सम मनी, आई वुड आल्सो हैव रश्ड इन, और मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ कि मतलब मैंने तो पॉलिसी नहीं बनाई, पॉलिसी आपने बनाई है, आप मुझे ये टर्म्स दे रहे हैं, तो यार मैं अंधा अंधे को भी नजर आ जाएगा कि बड़ी लुक्रेटिव पॉलिसी है, तो क्यों नहीं लोग जो है वो सेटअप करेंगे उसके अंदर। सो कोई इंक्लूडिंग आपको कोई 20 के करीब आईपीपीज जो हैं, दे रीच्ड फाइनेंशियल क्लोज द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 4500 मेगावाट। अब आपने कैपेसिटी जो है वो 3 गुना लगा ली है जो आपकी प्रोजेक्टेड शॉर्टफॉल थी उससे, और उनको आप कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं और बाकी सारी उनकी फाइनेंसिंग जो है वो आपने करना शुरू कर दी। अच्छा, ये जब आपने करना शुरू कर दिया है तो व्हाट आर यू बिल्डिंग? यू आर बिल्डिंग डेट। उस डेट को आपने कहना शुरू कर दिया कि ये सर्कुलर डेट है। ये सर्कुलर डेट, इसमें सर्कुलर कोई चीज नहीं है, दिस इज अ रिकरेंट डेट। ये जब आप पे ऑफ करेंगे, आपकी पॉलिसी ऐसी है कि ये दोबारा एक्यूमुलेट हो जाएगा। अभी 2 ट्रिलियन के करीब जो है वो आपका सर्कुलर डेट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। अब आप जो है वो उसको क्लियर करें, फिर क्या होगा? वो दोबारा जो है वो कई दफा हम माजी में उसको क्लियर कर चुके हैं, और कई दफा जो है वो तो एक परपेचुअल हम डेट के अंदर जो है वो आ चुके हुए, कि आपने एक ओवर कैपेसिटी क्रिएट कर दी। अच्छा, मजे की बात यह है कि जनाब जस्टिफिकेशन क्या थी ये करने की? ये मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, मतलब आप कहीं से भी साइट कर सकते हैं। ये एक वर्ल्ड बैंक की मुस्तनद जो है वो रिपोर्ट थी लीडिंग अप टू दिस होल पॉलिसी। उन्होंने कहा था कि जनाब ये जो है ना, दिस विल डिलीवर, ये अगर हम प्राइवेटाइज करेंगे सेक्टर को, दिस विल डिलीवर वाइडर, बेटर, मोर रिलायबल सर्विस, दिस विल improve the government's fiscal position and free up public funds for important causes such as health and education. They said, ये मैं कोट कर रहा हूँ उनको, मैं ये नहीं कि अपनी तरफ से नहीं बना रहा, मैं ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मैं आपको, और वो आप पेपर देखें तो उसमें एवरीथिंग इज sort of meticulously referenced। तो आपने जो भी हमने फिगर लिया है, जो भी हमने जो है वो किसी को कोट किया है, तो उसका रेफरेंस आज जो है वो मौजूद है, और हमने अखबारों से नहीं, मतलब पेपर्स जो है उनसे लिया हुआ। सब्सिडीज उन्होंने कहा कि वर नॉट हेल्पिंग द पुअर एनीवे सिंस मोस्ट ऑफ देम वर नॉट कनेक्टेड टू द ग्रिड्स इन एनी केस, तो टेकिंग अवे द सब्सिडीज वुड एक्चुअली हर्ट द रिच मोर देन द पुअर। तो ये सब्सिडीज खत्म करें और लोगों को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ जो जनरेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन बिजली की वो आप पास करें, ठीक है। 20 साल के बाद हमने क्या देखा इस पॉलिसी के? हमने देखा कि जनाब ये तो सारी इंडस्ट्री हमारी जो है वो बैठ गई है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस।
दिस पॉलिसी, वो रिकरेंट जो डेट है वो बार बार जो है वो खड़ा हो जाता है, और टैरिफ उतनी देर में जो है वो तेल की कीमत, पहले हमारा कोई 60-40 जो है वो एनर्जी मिक्स होता था टुवर्ड्स हाइडल, तो 60% हम हाइडल से बिजली बनाते थे और 40% और चीजों से हम बनाते थे। इसने बिल्कुल वो टिल्ट करके तो 70% थर्मल कर दिया। वो ऐसी चीज है जो हम तेल जो है वो हम खरीदते हैं बाहर से, वो हमारे पास है ही नहीं, और बाकी जो है वो गैस हमारे पास जो है वो कम है। तो हाइडल डेवलप करने के बजाय या अपना इंडिजिनस कोल डेवलप करने के बजाय हमने सारा अपने रिसोर्सेज यहाँ पे एलोकेट कर दी, और रिसोर्सेज भी इस तरह से एलोकेट की कि उस मार्केट के अंदर कंपटीशन ही नहीं था। देखिए, मैं एक बिजनेस स्कूल का प्रोफेसर हूँ, ठीक है, मतलब वी बिलीव इन कंपटीशन, वी बिलीव इन द प्राइवेट सेक्टर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्यों डिलीवर करता है? प्राइवेट सेक्टर इसलिए डिलीवर करता है कि आप दूसरों के साथ कंपीट करते हैं, उस कंपटीशन के अंदर यू वैल्यू गेट्स पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। अगर मैं उसमें से कंपटीशन निकाल लूंगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मार्केट फेलियर हो गया, ये तो मोनोपोली बन गई है। एंटी मोनोपोलिस्टिक जो है वो उसके अंदर फिर हमें एक्ट्स जो है वो बनाने पड़ते हैं और लाने पड़ते हैं, और उनको तोड़ना पड़ता है मोनोपोलीज को दोबारा, ताकि कंपटीशन। हम 25 साल से बैठे हुए हैं एक पॉलिसी के ऊपर जिसके अंदर कंपटीशन ही नहीं। तो मतलब वो प्राइवेटाइजेशन जो है उसका तो सारा रेजों डेथ जो है, जो उसका होल पॉइंट है ऑफ डूइंग अ प्राइवेटाइजेशन व्हिच इज टू ब्रिंग कंपटीशन इन। क्योंकि हम कहते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं वो इनएफिशिएंट होती हैं, क्योंकि वो उनको compete नहीं करना पड़ता, दे आर सब्जेक्ट टू अ सॉफ्ट बजट कंस्ट्रेंट। तो वो उनका है ही नहीं कि मतलब वो फेल हो सकती हैं या बैंकरप्ट हो सकती हैं कुछ, तो मतलब व्हाई शुड दे बी एफिशिएंट? कोई एफिशिएंसी का इंसेंटिव नहीं। तो ये हमने यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर दिया। अच्छा, वो फिर जो पैसे जो जाने थे हेल्थ में, एजुकेशन में, वो थियरी के अंदर, सो वो वहां पे भी हमने इसी किस्म की पॉलिसी जो है वो कोई बनानी शुरू कर दी। ठीक है, अब एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देते हैं कि जी 100 मेगावाट का जो है वो प्लांट आपने लगाना है, ये उस पेपर के अंदर हमने एग्जांपल जो है वो डिस्कस की हुई है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में अगर आप लगाएंगे तो पब्लिक सेक्टर, बिकॉज इट देयर आर गवर्नमेंट बैक्ड होती हैं जो गारंटीज होती हैं, उसके अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होती है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 12%, ये हमने 10 साल पहले जो है वो कैलकुलेशन की थी, 12% पे हमने जो है वो डेट ले लिया, ठीक है, और 10 साल के लिए हमने लोन लिया, तो 45 मिलियन हमारा जो है वहां पे इक्विटी रिटर्न आपने किसी को देना नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 3% आप और लगा लें, क्योंकि उनको उतना सस्ता नहीं मिलेगा जितना गवर्नमेंट को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो पैसे छाप सकती है। सो उनकी थोड़ी सी जो है वो रिस्क ज्यादा होता है प्राइवेट से, उनका आप 15% ले लें, ठीक है, तो उधर ही आपको जो है वो 11 मिलियन जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा। फिर आप उसमें इक्विटी रिटर्न डाल लें, जो 15% आपने डॉलर्स के अंदर जो है वो देना है। अच्छा, वो आप जो है वो तकरीबन 4 मिलियन आता है हर साल का, तो अबाउट 97 मिलियन ओवर 25 ईयर्स। तो जो आप 25 मिलियन की इक्विटी जो है वो डालते हैं, अगर 100 मिलियन का जो है वो प्लांट है, तो उसके अंदर जो है वो फॉर एवरी प्लांट द गवर्नमेंट एंड्स अप पेइंग अबाउट 83 मिलियन डॉलर्स मोर ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मतलब कौन किसको यहाँ पे सब्सिडाइज जो है वो कर रहा है। सो आप अगर किसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, शुगर की आप मिसाल ले लें, पिछले दिनों शुगर का भी जो है वो चक्कर चला हुआ था, जिसके अंदर आई मीन अगेन देयर वाज अ सिमिलर इशू। मैं ये कहता हूँ जनाब कि मैं बढ़ाने देता हूँ शुगर प्रोड्यूसर्स को प्राइस टू 100 रुपीज किलोग्राम, उसके बाद मैं उनको वो 20% सब्सिडी दे देता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि यार 80 पे मैं लोगों को दूंगा, मैं आपसे 100 पे खरीदूंगा, मैं आगे 80 पे लोगों को जो है वो दे दूंगा। अब एक्चुअल कॉस्ट उनकी जो है वो आ रही है 40 रुपए किलो या 50 रुपए किलो, उनसे मैं 100 पे ले रहा हूँ, तो उनको 50 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, लोगों को जो है वो 20 रुपए की मिल रही है। तो हु इज सब्सिडाइजिंग, हु इज द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट वी नीड टू लुक इनटू। अच्छा, ये हमने उस वक्त जो है वो ये हम लिख रहे थे, 10 साल से भी ज्यादा जो है वो हमें हो गया है, लोगों से डिस्कस भी कर रहे थे, जो लोग अभी इक्तदार में बैठे हुए हैं उनसे भी डिस्कस कर रहे थे, जो एडवाइजर्स भी हैं उनसे भी, उनको भी पता है, एंड वी वर प्रिडिक्टिंग कि ये होगा, बिकॉज इट्स प्रीटी मच अ नो ब्रेनर कि ये चीजें जो है वो होंगी। अच्छा, अब तो ये रिपोर्ट ने क्या, व्हाट डिड द रिपोर्ट फाइंड आउट? डिड दे फाइंड आउट एनीथिंग दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग? उन्होंने कहा जनाब, पहली चीज तो जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था वो कह रहे थे जनाब
कि 1000 मिलियन रुपए जो हैं वो डेली के लूज हो रहे हैं पावर सेक्टर के अंदर। हमने हुकूमत से मांगे और ये प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट की हुई है कमेटी, ये जिसको मोहम्मद अली साहब हेड कर रहे थे। वो कहते और आई मीन गिवन द रिसोर्सेज इट्स अ गुड रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा जनाब कि हम 22 मिलियन मांग रहे थे टू ऑब्टेन द बेस्ट इंटरनेशनल एक्सपर्टीज टू सजेस्ट वेज टू स्टॉप दिस ब्लीडिंग ऑफ पब्लिक मनी, वो भी हमें डिनाई कर दी गई, हालांकि हम 1000 मिलियन रोज का लूज कर रहे हैं, हमने सिर्फ 22 मिलियन जो है वो मांगे थे कि हमें। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि हमें डेटा भी नहीं दिया गया, ये प्राइम मिनिस्टर की कमेटी है, ठीक है, जिसको डेटा भी जो है वो नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा जी कि हमें तो टैरिफ ब्रेकडाउन भी नहीं दिया किसी ने, कि 1994 की पॉलिसी के अंदर टैरिफ ब्रेकडाउन जो है वो था क्या, वो भी हमें जो है वो नहीं। अच्छा, 1994 की पॉलिसी के अंडर जो IPPs लगे थे, what did the report find out about them? They say, and again this is directly lifted from the report, they say under the 1994 power policy 16 out of 17 IPPs invested a combined capital of 51.8 billion rupees and have so far earned profits in excess of 415 billion rupees, having taken out dividends in excess of 310 billion. अच्छा, और फिर वो ये कह रहे हैं कि these numbers are actually very very conservative, क्योंकि सारा डेटा उनके पास जो है वो नहीं था। अच्छा, फिर वो कहते हैं जनाब कि 6 companies earned average annual ROEs, return on equity, between 60 to 80%, and 4 companies earned ROEs of around 40%. और ये रिपोर्ट ही कह रही है कि these profits are probably unheard of in any other sector, especially with such low level of risk and guaranteed payments by the government. ठीक है, जो हम चीजें वो कह रहे थे वो रिपीट हो रही हैं इस रिपोर्ट के अंदर। फिर वो कह रहे हैं जनाब कि RFO का आप इशू ले लें, गैस प्लांट्स वगैरह का, क्योंकि 2002 के अंदर अगेन देयर वाज हीट एंड आई मीन सम चेंजेस वर मेड, सम कॉस्मेटिक चेंजेस वर मेड टू द पॉलिसी, आई शुड से। वो कहते हैं जनाब कि 2002 की पॉलिसी के अंडर जो लगे, ड्यूरिंग द लास्ट 8 to 9 years of operations, these companies have so far earned profits of 203 billion against their combined investment of 57 billion. कहते हैं average annual ROE as high as 87%, profits of around 9 times and dividends up to around 7 times their investment. 2015 की पावर पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं वो कहते हैं जनाब कि these plants have been offered, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर एक और मैं आपको जो है वो चीज बताऊंगा कि these plants have been offered US dollars internal rate of return of 17%, which works out to an ROE dollar denominated of 27%. Due to rupee devaluation against USD in the last 2 years, their rupee ROEs today stands at 43%. अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि ये क्यों है इतनी एक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। वो कहते हैं इनकी कुछ वजूहात है। एक चीज तो ये कि देयर इज मिस रिपोर्टिंग। मिस रिपोर्टिंग किस तरह की है? एक चीज तो ये है कि आपकी जो है वो एफिशिएंसी लेवल आपका है कितना। हुकूमत खुद जो है वो अंदर जाके नहीं ये मुतय्यन कर रही, वो जो आप बताते हैं उसको एफिशिएंसी, उसके ऊपर जो है वो हुकूमत वो करना शुरू कर देती है। आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है, आप रिपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब ये कर रहे हैं, लेकिन अगेन like we said, even if we believe 1/3 sort of this report, तो हो रहा है, and I'm not saying that everyone sort of is doing it, हो रहा है, so worth investigating and looking into, worth having an audit, जो वो कंपनीज कराने को तैयार apparently नहीं है। मुझे नहीं पता, मैंने उनसे जाके नहीं पूछा, मैं again I am quoting what the report, and this is the Prime Minister's committee, so वो कह रहे हैं जनाब कि उन्होंने मिस रिपोर्ट किया हुआ है कि वो एक्चुअली किस एफिशिएंसी के ऊपर लगता है। फिर ये कि ऑपरेशन और मैनेजमेंट कॉस्ट, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, उनको ओवर रिपोर्ट जो है वो किया जाता है। प्लांट की कॉस्ट जो है उसको जो है वो ओवर रिपोर्ट किया जाता है। फिर ये कि अगेन sort of फिर वो ये कहते हैं जनाब कि हीट रेट जो है वो is based on information provided by the respective IPPs. The actual heat rate submitted by one of the IPPs, ये report कह रही है, which has consistently operated at higher efficiency levels than those submitted to NEPRA. Similarly, O&M component of tariffs is based on estimates provided by the IPPs and so on. तो कहते हैं अच्छा, ये US डॉलर ये आया कहाँ से? ये बड़ा दिलचस्प है, ये मुझे भी नहीं पता था।
मैं समझता था कि शुरू से शायद यूएस डॉलर के अंदर जो है वो ये पॉलिसी थी. इवन दो आई टॉक टू many of the architects, and we talked to many of the architects, you know, of this policy, both on all sides of the transaction. Yeah. वो कहते हैं जनाब कि पहले जो है वो ये जो रिटर्न था that was rupee based, and then it was converted, right? By whom? By the Economic Coordination Committee of the cabinet. It was just overnight created. अच्छा 15% आपने कहाँ से जो है वो रिटर्न निकाला है? आपने वही से निकाला है कि आपका जो है वो बोरोइंग कॉस्ट कितनी होगी, आपकी बाकी जो है वो चीजें का कितनी होंगी, उसके ऊपर जो है वो हम आपको गारंटी कर रहे हैं रिटर्न. अच्छा वो बोरोइंग कॉस्ट रुपी में जो है वो आपकी ज्यादा होती है, डॉलर्स में जो है वो आपकी कम होती है, तो आपने उसी 15% को डॉलर जो है में कन्वर्ट कर दिया. हालांकि जो बॉन्ड की यील्ड थी उस वक्त यूएस ट्रेजरीज की वो कोई 2% थी, पाकिस्तान की जो है कोई 10% थी. तो बाय सम स्ट्रोक ऑफ मैजिक उसको रुपी बेस्ड को जो है वो आपने डॉलर बेस्ड में जो है वो कन्वर्ट कर दिया. चले वारे न्यारे हो गए. तो लेकिन दैट वाज द पॉलिसी. ठीक है, ये मतलब आईपीपी ओनर्स ने खुद तो नहीं बैठ के घर पे जो है वो किया, ये तो मतलब उनको जो है वो दिया गया. सो फिर वो खैर बात करते हैं सर्कुलर डेट की, उसके ऊपर भी हमने जो है वो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं. सर्कुलर डेट जो है वो बार बार इकट्ठा हो जाएगा और दिस इसेंशियली ये खैर मैं एक और ही जो है वो इशू के ऊपर पहुंच गया. सो आई विल जस्ट आई मीन सो व्हाट द रिपोर्ट फाइंड्स इज नॉट सरप्राइजिंग. And if you create a policy like that, you are bound to get results like that. And especially when you have a weak state, a state that cannot effectively regulate, that cannot provide effective oversight. तो उसके अंदर फिर इस तरह की पॉलिसी जो है that is going to, I mean, I've probably gone on for too long. Salman, would you like to add something to what I've said? Salman is on mute right now. Eamon, can you unmute her? Yeah, can you hear me now? Yes. I think fundamentally बात ये आ जाती है कि इस तरह का स्ट्रक्चर बना क्यों है. In hindsight you do it because why do you guarantee payments? Because you guarantee payments because basically infrastructure projects के अंदर typically big chunk of the जो project cost होती है वो bank finance होती है. So you need to have a bankable project. So typically आप high leverage levels रखते हो, 80-20 debt equity कर लिया आपने. So to provide banks with comfort कि हमें repayment हो जाएगी हमारी, you provide them some guarantees, you provide some clear visibility cash flows क्या होंगे, which makes sense. So in a market जहाँ पे कोई private sector history नहीं है power market की, maybe to kickstart the market, you can have maybe 1 or 2 projects like this initially जहाँ आपको हुआ था. लेकिन बात ये है कि why are we stuck with the same more or less structure almost 30 years down the road? In the meantime, other markets which sort of started around similar levels वो evolve कर गई हैं. So हमारे पास for example टर्की की है. टर्की ने भी early 2000s में similar policies start किया. टर्की जो है almost completely merchant market बन चुकी है आज. हमसे थोड़ा बाद में शुरू किया था उन्होंने. वहाँ पे इस वक्त कोई गारंटी नहीं है किसी पेमेंट की. वहाँ पे एक प्राइवेट मार्केट बन चुकी है जहाँ पे कंपटीशन होता है बिटवीन पावर प्रोड्यूसर्स. ऑन अ डेली बेसिस वो टैरिफ बिडिंग करते हैं अपनी कि ये मेरी इलेक्ट्रिसिटी है, ये इसकी कॉस्ट है, आप खरीदने के लिए तैयार हैं या नहीं है. उनकी कोई गारंटीड पेमेंट्स नहीं है. और उसकी वजह ये है कि अब वो मार्केट उनको विजिबिलिटी दे रही है कि टैरिफ डिमांड सप्लाई की जो कंपटीशन है वो डिटरमिन करे टैरिफ. ठीक है, वहाँ पे आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा कि आपके हमेशा के लिए ये टैरिफ होगा, ये रिटर्न होगा. The reason they have been able to evolve over time is because obviously market starts mature, markets में know-how बढ़ गई, maturity आनी शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता. Government started changing the policy over time, which makes sense. So वहाँ पे effectively the market is determining the price of the electricity. अगर वहाँ पे जब डिमांड ज़्यादा होती है तो टैरिफ थोड़े बढ़ जाते हैं. डिमांड सप्लाई गैप जो ज़्यादा होगा, जब डिमांड सप्लाई गैप रिवर्स होगा और एक्चुअली सप्लाई बढ़ जाएगी डिमांड से, वहाँ पे टैरिफ क्रैश करते हैं, और विच इज़ फाइन. That is how the market should operate.
अब पाकिस्तान के केस में चले आप आर्ग्यू कर लेते हैं, ठीक है इस तरह नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान उतना मैच्योर नहीं जितना टर्किश कैपिटल मार्केट्स हैं, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेशन रीजनेबल है कि 25 साल के बाद भी आप वहीं पे खड़े हुए हैं, आप अभी भी तक आपके अंदर कोई एवोल्यूशन नहीं आई आपके स्ट्रक्चर में? अब बात ये है कि आई कैन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली एज अ बैंकर के यू नीड टू हैव बैंकेबल प्रोजेक्ट, लेकिन दैट bankability is linked to financing banks. I can guarantee that financing banks will get their payments back. I don't need to guarantee an equity return for the investors. First of all, investors should take some risk on the project. First of all, number two, आपका जो है even in this structure, why are we offering people a guaranteed equity return on a plate? Why don't we, if we talk about the power of the market, तो हम उनको bidding करवा लेते हैं. Why can't they all bid for projects? कि आप बता दो, गवर्नमेंट बता सकती है मैंने 1000 मेगावाट का प्लांट लगवाना है, मैंने 500 मेगावाट का प्लांट लगवाना है, ये साइट है, टेक्नोलॉजी मोरलेस ये होगी, you go and you decide how you want to, which structure you want to have, which partners you want to have, which financing banks you want to have, come and give me the best and most optimum terms for the project. So I can still structure something within that as कि capacity payment है, ये debt को pay करेगा, ये थोड़ा मेरे ऊपर मेरी O&M cost है, ये मेरी equity return है, which is fine, but at least competitive bidding तो होगी ना. पाकिस्तान में तो अभी तक नहीं हुआ कि हमारा एक्चुअल रिटर्न और इक्विटी होना क्या चाहिए हमारे रिस्क के ऊपर. मार्केट में तो बिडिंग नहीं हुई अभी तक कंपेटिटिव रिस्क के ऊपर. हम गारंटी करके कहते हैं, पहले 15% स्टार्ट किया, फिर कोई आ गया उसने कहा नहीं यार ऐसा करते हैं 17% कर देते हैं, फिर किसी ने कहा नहीं यार चलो पाकिस्तान चाइना बहुत अच्छी दोस्ती 20% कर देते हैं. इट्स लाइक इसके परवर्स इंसेंटिव्स क्रिएट हो रहे हैं. इसकी वजह से क्यों हो रहे हैं? अगर सिर्फ हम सारे स्ट्रक्चर में जो सारा मेस है, सिर्फ अगर हम कंपेटिटिव बिडिंग का आंसर लेके बीच में आ जाते हैं, उससे क्या होगा? अभी क्या हो रहा है, आप कहते हो कि मेरी प्लांट की एफिशिएंसी है 45%, उसका मतलब क्या है? मैं 45% जो एनर्जी है मेरे फ्यूल के अंदर, वो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है. एक्चुअल जो है एफिशिएंसी ऑफन जो है प्लांट की होती है 47%. सो जो डेल्टा है 2% के बीच में है, उसकी पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है फ्यूल की प्लांट को, लेकिन वो प्लांट एक्चुअली यूज नहीं कर रहा, वो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है उसको ऑन टॉप. फिर आप कहते हो मेरी O&M कॉस्ट लेट्स से $1 per किलोवाट आवर है, एक्चुअल O&M कॉस्ट आपकी आ रही 0.8, ठीक है, उसमें आप $0.2 per किलोवाट आवर ज्यादा खा रहे हो. तो एक्चुअली आप जो इवन ऑन पेपर कह रहे हो मेरा इक्विटी रिटर्न है 15%, 17%, 20%, उससे आपका इक्विटी रिटर्न काफी ज्यादा है, क्योंकि ओवरसाइट प्रॉपर नहीं है, competitive bidding नहीं है. Competitive bidding में होता तो ये all of them would be incentivized to provide the most optimum tariff, because they would say minimize the O&M cost, they would optimize the technology used, they will optimize the efficiency in a reasonable range, and you will get the most optimal structure out of it. उसके बाद अगर if the operator is more efficient than the baseline over time, you can always split that upside with him, which is fine, because overall आपकी cost of production कम हो रही, you're okay with sharing some of that upside with him if he's an efficient operator. Lekin how does why have we not moved after 27 years of 1994 towards even a competitive bidding model? हम तो वो बात ही नहीं कर रहे जो merchant model होता है, वो तो बहुत बात की बात है, हम तो competitive bidding में नहीं करवा रहे अभी तक. अभी थोड़ा सा ख्याल लोगों को आया था कि wind farms के ऊपर शायद हम competitive bidding कराते हैं, वो अभी तक उसमें I think पहला project भी आगे नहीं आया. So which is so again this is past and this is history, and together essentially situation jo hai, I think everybody in the industry, whether it is the operators, whether it is the government, whether it's the consumers, har koi ye baat manta hai ki jo bhi hai ye unsustainable messy situation hai. वो इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट पास हो रही है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट नहीं पे कर पा रही, और वो नहीं पे कर पा रही और कंज्यूमर भी नहीं पे कर पा रहा. उसकी वजह से हर जगह पे लॉसेस आ रहे हैं, पेमेंट्स के अंदर लॉसेस आ रहे हैं, कंज्यूमर से गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से आईपीपीज को. उसकी वजह से आईपीपीज को भी मसले हैं, क्योंकि उनके कैश फ्लोज जो अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं. एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो मुझे प्रेडिक्टेबल लो रिस्क यील्ड मिले, but because of the perverse incentives of the structure, because of lack of regulatory oversight, हमने एक्चुअली इसको भी एक अजीब-गरीब सी सिचुएशन बना दी जहां पे इट्स नॉट इवन अ टिपिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एनीमोर, क्योंकि हमें प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं हमारे पास कैश फ्लोज की. अब गवर्नमेंट का नहीं पता, उसने आपने 6 महीने बाद उसे पेमेंट करनी है, उसने साल बाद पेमेंट करनी है, उसने 9 महीने बाद पेमेंट करनी है. In the meantime, you keep on burning your fuel, you keep on producing electricity, you keep on supplying to the government,
you keep on taking debt from the banks with promises of future payment against those loans, जो again government pay करती late payment interest के ऊपर. But you know, what is clear is this is not sustainable. So question is कि अगर sustainable नहीं है, तो what should we need to move towards a solution. Now question is कि solutions क्या हो सकते हैं, and there are two kinds of them. There are solutions you can look to address the historical problem, and then there are solutions you have to look towards addressing the future problems. हिस्टोरिकल प्रॉब्लम वाला ज़्यादा मुश्किल इशू है, तो इसलिए मैं पहले फ्यूचर वाले की तरफ आऊँगा. फ्यूचर जो है वो उसमें दो चीज़ें तो हमें करनी पड़ेंगी. एक तो स्ट्रेट अवे आपको जो है ना कंपेटिटिव बिडिंग की तरफ जाना पड़ेगा. ये जो फ्री राइड चल रही है कि मैं गारंटी कर रहा हूँ 20% हमेशा के लिए आ जाओ, प्लांट लगा दो, दैट मॉडल डजंट वर्क. ठीक है, we are past that stage. We are mature power sector, 27 years गुजर गए हैं. Let's have competitive bidding at the very least as a first step. That will already, I think you might find out कि actually जब bidding होती है तो equity return expectations जो है ना पाकिस्तान के ऊपर वो 20% नहीं है, probably closer to 12% होंगी शायद, या 13% होंगे at max. So you will start saving straight away on that. Secondly, I would guarantee you that the operators will find more efficient plants, more efficient technologies, and they will have lower O&M costs. Magically, एकदम से समझ नजर आना शुरू हो जाएगा कि वो actually बेहतर ऑपरेट कर सकते थे जिससे जो कह रहे थे हिस्टोरिकली. एक तो ये चीज हो गई. दूसरी बात ये कि ओवर टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन बेस लोड डिमांड एंड पीक डिमांड. सो होता है कि आपकी जो डिमांड है वो एक सर्टेन लेवल पे चल रही होती है, उसमें फिर पीक्स आती हैं और ट्रफ्स आते हैं. पीक्स आती हैं समर के अंदर, पीक्स आएंगे जब स्पेशल कोई ओकेजन्स आएंगे, दिन में डिमांड ज्यादा होती है, रात को कम होती है. सो जो मॉडल है टिपिकली बाकी दुनिया में वो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन पीक लोड एंड बेस लोड. तो उनके जो मॉडल्स, उनके जो मर्चेंट प्लांट होते हैं वो पीक लोड प्लांट्स होते हैं और उनके पास गारंटीज नहीं होती कोई, लेकिन दे हैव पॉसिबिलिटी ऑफ creating more profits for themselves because they're taking market risk on the demand. जो बेस लोड होते हैं उनका ऑब्वियसली मॉडल स्लाइटली डिफरेंट होता है, उनके पास क्योंकि वो लो रिस्क प्रोफाइल आप देख रहे हो. बट ओवर टाइम आई थिंक जो एवोल्यूशन है हमारी वो हमें जाना पड़ेगा टुवर्ड्स एक तो डिफरेंशिएशन करनी बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ डिमांड्स. नंबर टू, हमें जाना पड़ेगा मोर एंड मोर टुवर्ड्स एक्सपोजिंग इन्वेस्टर्स टू सम डिमांड रिस्क. एंड डिमांड रिस्क का मतलब ये है कि अगर मेरा प्लांट इफिशिएंट नहीं है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है और देयर इज अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, देन आई विल नॉट बी डिस्पैच्ड एंड आई विल नॉट गेट अ रिटर्न फॉर दैट पीरियड. आई थिंक वो उस मॉडल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हमें इवॉल्व करना होगा. बाकी मार्केट्स में एवोल्यूशन हो चुकी है, हो रही है जो इमर्जिंग मार्केट्स थी. Secondly, I think जो equity return है, I don't understand the perspective of having a dollarized return. You can have a rupee return, you can adjust for the fact that there is going to be depreciation, rupee versus dollar. वो जो delta है हमें determine करने की जरूरत नहीं. Let the market determine it. Let the market determine वो delta क्या होना चाहिए and वो रेट्स क्या होना चाहिए. लेकिन हमें डॉलर में अपने आप को पैग नहीं करना चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है. इंडिया में नहीं होता में पैग कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडिया में हमारे साथ ही हैं. डिफरेंस की क्या होता है एज एनी बैंकर, व्हाट वुड यू डू? यू लुक एट, इवन इफ यू लुकिंग एट डॉलराइज्ड रिटर्न, आप कहते हो डॉलर वर्सेस रुपी जो है इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स क्या होंगे लॉन्ग टर्म, आप उसकी बेसिस उसको बिल्ड करते हो अपने एक्सपेक्टेशंस के अंदर एंड यू डू योर एनालिसिस. सो we don't need to provide it on a dollarized plate on ourselves. I think investors are sophisticated enough to incorporate that in their analysis. जो मुश्किल प्रॉब्लम है हिस्टोरिकल्स के साथ क्या करना है आपने, हिस्टोरिकल लेगेसी प्रोजेक्ट्स के साथ, उसमें कोई आसान सोल्यूशन नहीं है. लेकिन कुछ चीज़ों को आई थिंक हमें सोचना चाहिए. वी कैन बी वेरी लीगलिस्टिक अबाउट इट. IPPs कैन से कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो ये लिखा हुआ था, हम तो यहाँ से बाजी नहीं करने वाले. और हुकूमत कह सकती है भाई हमने इन्वेस्टिगेट किया था, आपने फ्रॉड किया हुआ काफी जगहों पर. सो एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ वेरी मेसी सिचुएशन जहाँ पे सॉवरेन डिफॉल्ट्स भी हो रहे हैं एंड नोबडी इज गेटिंग डिस्पैच्ड एंड इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग डाउन द ड्रेन. Because at the end of the day, it is not in the interest of either the IPPs or the government to have disruption in this sector. It's a key sector of the economy. So, I think moving away from the legalistic positions जो अभी हैं, what I would suggest is कि क्वेश्चन हम उसको सस्टेनेबल किस तरह बना सकते हैं. सस्टेनेबल बनाने के लिए आई थिंक 2-3 थिंग्स तो बड़ी क्लियर है. अगर कोई ओवर इन्वॉइसिंग कर रहा है,
अगर उसकी एफिशिएंसी एक्चुअली ज़्यादा है जिससे उसके मुकाबले जो वो एक्चुअली कह रहा है, या उसकी O&M कॉस्ट एक्चुअली कम है जो वो एक्चुअली अब डिक्लेयर कर रहा है, तो उसको तो फॉरन कर्टेल करना चाहिए, बिकॉज ये तो इन अ वे आप फ्रॉड कर रहे हैं। इसमें कोई, वी शुड नॉट मिन्स आवर वर्ड, दिस इज फ्रॉड. Government should be able to track the efficiency and heat rates of those plants. और उसमें कोई ब्लॉक करने वाली बात नहीं है. दिस इज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन. कॉस्ट प्लस मॉडल है, कॉस्ट प्लस रिटर्न मॉडल. सो एक्चुअली कॉस्ट प्लस मॉडल को कॉस्ट प्लस मॉडल ही होना चाहिए. कॉस्ट प्लस मॉडल का मतलब कॉस्ट प्लस 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 रिटर्न मॉडल नहीं होना चाहिए. सो दिस विल एक्चुअली, इट्स अ मटेरियल अमाउंट, दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. अगर आप उनकी अभी जो रिपोर्ट है उसको अगर देखें, अब मैंने खुद उसको ऑब्वियसली वो नंबर्स को मैंने खुद नहीं जांचा, लेकिन अगर उन नंबर्स को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं एज रीजनेबल नंबर्स, तो there is a huge amount of excess payments going to all the IPPs versus what they contractually should be getting, because over invoicing हो रही है. So that is number one, and that I think अगर ये issue सही है और कुछ IPPs ऐसे कर रहे हैं, तो I think they should be penalized for that, and you know, you should be able to claw back those payments. It's a reasonable expectation, right? दूसरी बात, क्या returns हमारे perpetually 20%, 18% पे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अब इसके ऊपर मैं किसी को कंपेल नहीं कर सकता एज अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एज अपोज्ड टू देयर कॉन्ट्रैक्ट, कि आपके रिटर्न क्या होने चाहिए. बट क्वेश्चन ये कि क्या मार्केट ओवरऑल, मार्केट स्ट्रक्चर आपके रिटर्न्स को सपोर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता. अभी नजर जो आ रही सिचुएशन ये है कि रिटर्न्स तो है कॉन्ट्रैक्चुअली सर्टेन लेवल पे, बट मार्केट इज अनेबल टू पे यू बैक, हेंस यू हैव अ सर्कुलर डेट प्रॉब्लम, व्हिच मींस कि परहैप्स यू नीड टू रिड्यूस overall tariffs in the model, in the market to a level जो शायद जहाँ पे losses कम है, delta कम है बीच में, what is required to be paid and what is actually paid, to reduce the problem of circular debt. So maybe there is a discussion to be had between the investors and the government कि ठीक है, maybe we are willing to let go of our contractually bound equity returns in exchange for maybe clearing of the circular debt and guaranteeing कि future में हमें payments time पे होंगी. If I was an equity investor, I would rather shave off 1 or 2% of my IRR to ensure कि मेरे payments cash flows time पे आ रहे हैं. And that will help overall the sector, because that will make the whole sector more sustainable and stable, and it will attract a lot more future investments into the sector in Pakistan from both domestic investors and long-term investors. अगर आपको बाहर से बंदा देख रहा है कि अगर पेमेंट हो सकती है, टाइम पे हो रही है, और गवर्नमेंट इज एबल टू पे, एंड द इक्विलिब्रियम इज सच कि ये सस्टेनेबल है, दैट इज मोर अट्रैक्टिव फॉर मी देन अ सेक्टर जहाँ पे मैंने 18-20% IRR रखा हुआ है और पेमेंट्स टाइम पे नहीं हो रही. सो I think that's something I think we need to be reasonable and pragmatic. I think we can be legalistic about it as an IPP sector or as a government, and I think you can throw lots of dirt at each other, but I think we need to sit down and find a sustainable model in terms of returns, so that overall cost in the system is such कि आप maintain कर सकते हो. दूसरी बात, I think from pure mechanical perspective, अगर आप एक दो चीजें सोच सकते हो, अभी 20% जो है equity आप डालते हो प्रोजेक्ट के अंदर एज एन इन्वेस्टर, वो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 20%. परहैप्स वहाँ पे, एंड अगेन विद द कंसेंट ऑफ द IPPs in the sector, I think there's a discussion to be had that maybe I can reduce that requirement to 10%, and I can replace that with maybe bank financing. So आपकी equity जो है 10% रहेगी और debt effectively 90% हो गया in a way. So what that will allow is कि actually जो आपकी cost of debt is lower than cost of equity. Cost of equity आपकी dollarized है और inflation impact है उसका, और overall equity either way is more expensive than debt. So maybe there is an argument to be had कि मैं actually आपकी requirements कम कर देता हूँ equity in the plants, आप replace कर दो half of that equity with debt. So overall long term savings उसमें आ सकती हैं plants में. Number 2, I think अभी तक जो borrowing हो रही है वो effectively Kybor plus 3%, Kybor plus 2.5%, something like that होती है. Obviously होती है क्योंकि these are obviously independent project companies, and they are, their risk profile is higher than the government of Pakistan, even though the government of Pakistan is guaranteeing the payments. Now fundamentally the issue is that it's an accounting issue, but I am, as the government of Pakistan, liable for the debt payments anyway. मैंने capacity charge के through की debt payment करनी ही करनी है.
तो द ओनली डिफरेंस इज कि क्योंकि वो मैंने खुद डायरेक्टली डेट नहीं प्रोवाइड किया हुआ, तो वो मेरी बैलेंस शीट पे नहीं आ रहा एज अ गवर्नमेंट पाकिस्तान, बट इट्स माई लायबिलिटी एनीवे। तो सवाल ये उठता है कि maybe there is an argument to be had कि शायद there is I think already government ने power sector एक debt holding company बनाई हुई है circular debt को retire करने के लिए, but if you can raise at KIBOR as government of Pakistan, then why are you contractually linking yourself to KIBOR plus 3% for the long run? So because you are going to pay for it anyway, right? So I would rather raise the debt at government GOP level, even though अकाउंटिंग वाइज इट्स ट्रीटमेंट्स की डिफरेंट होगी, शायद IMF चीखें मारे थोड़ी सी, बट रियलिटी में इसमें कोई फर्क नहीं है, लाइबिलिटी फर्क नहीं पड़ती है आपकी, लाइबिलिटी आपकी वही है. So maybe that debt should be raised at the power debt holding company level, and we have to look at obviously the contractual breakup cost of with banks, but maybe there is an argument to replace some of that debt जिन plants है with government debt. So वो straight with 3% spread आपका कम हो जाता है उसके अंदर. Lastly, I think if there is a possibility of actually spreading your debt repayment for the plants जो अभी debt pay कर रहे हैं over a longer tenure, instead of 10 years, let's say अगर वो 15 years पे जा सकता है, तो overall जो levelize overall आपका जो tariff है upfront अभी जो हम दे रहे हैं वो overall थोड़ा सा कम हो जाएगा. So these are more some mechanical things. I think we should start thinking about. Now I'm not saying कि ये सब कुछ होगा. But I'm just saying that this is food for thought. I think there are pros and cons of these, behind these proposals. Lekin they cannot be enforced without pragmatic approach from both the government and the private sector in trying to make the sector sustainable. So, and I think that's what's required. At the end of the day, would you be in a ship which is maybe not getting first class anymore, maybe second class, but it's not going to sink? Or are you going to be in a ship जो sink कर रही है लेकिन आप first class में बैठे हुए हो? No, absolutely. No, this was excellent. Thank you so much. And most of the suggestions which you gave seemed very reasonable and very logical. So जिस तरह आपने explain किया है कि it seems कि इस sector में एक बहुत बड़ा policy failure था जो 94 से चला आ रहा था जब से policy बनी, और उसके बाद वो सिर्फ एक हुकूमत का नहीं था, मगर वो पॉलिसी अब तक पिछले 30 सालों से वो वही पॉलिसी फेलियर चलता जा रहा था. और जैसे सलमान, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप. आई थिंक दैट वाज एन एक्सीलेंट पॉइंट दैट हम जब ये बहस करते हैं कि 15% रिटर्न होना चाहिए कि 20% होना चाहिए, और उसमें सब्जेक्टिव ओपिनियंस हो सकती है, कोई कह सकता है कि 10% हो. एंड यू सेड कि अगर कंपेटिटिव बिडिंग होती जिस तरह बाकी मुल्कों में होती है, उससे हम अंदाजा लगा सकते थे कि व्हाट इज अ फेयर लेवल ऑफ रिटर्न व्हिच शुड हैव बीन गिवन. I have there are a lot of questions which people have asked, and we'll go to that, and we still have 15 minutes. But I'll kick off with the first question. ये जो हमने CPEC की जो projects investments हुई थी, वो भी ज़्यादातर power sector में हुई थी. Are they also under similar framework, which means that हमने जो international payments करनी है, वो भी इसी cost पे होंगी? जी, तो I think जो I mean I think broadly I would say कि contractual framework similar है, और returns जो है actually even higher है. I think around 20% if I remember CPEC and the guaranteed equity IRRs हैं projects में कईयों के अंदर. उसमें एक और चीज़ बड़ी interesting है, वो ये है कि उनकी जो EPC cost है वो comparable projects है पाकिस्तान से almost 30-35% ज़्यादा है. So अगर आप $1 million per megawatt देख लें ना, तो आप एक वो CPEC कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप देख लें और उनको कंपेयर कर लें, सिमिलर प्रोजेक्ट्स उनके आसपास लगे हैं उसी टाइम पे, तो आई थिंक जो ये रिपोर्ट है इसके अंदर इसमें मेंशन करते हैं स्पेसिफिक साहिवाल का. आई थिंक फॉर एग्जांपल साहिवाल का जो है वो आई थिंक ऑलमोस्ट $0.6 million per megawatt एक कंपेरेबल प्रोजेक्ट उसके टाइम के आसपास लगा था. CPEC का तकरीबन $1.1 million के आसपास साहिवाल का शायद लगा था. मुझे आई मे नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर द नंबर, बट there is a huge difference in terms of EPC cost. So और उसकी गलती उसमें अगेन वही आ रही थी कि G2G एक डिस्कशन थी, कंपेटिटिव बिडिंग हुई कोई नहीं. जहाँ पे बिडिंग हुई वहाँ पे EPC कॉस्ट कम है, और जहाँ पे नहीं हुई वहाँ पे 40% ऊपर है. उसका नुकसान क्या है वो ऑब्वियसली आपसे और हमसे टैरिफ में निकालेंगे. तो 30-35% ऑलरेडी आप बलून हो गई पेमेंट ऑन टॉप जितनी होनी चाहिए थी उसके मुकाबले में. तो आई थिंक दैट्स उसको क्या कहेंगे,
सेकेंडली सो जो आपकी सीपेक के प्रोजेक्ट्स के अंदर एक और जो अजीब बात है वो ये है कि कई चीज़ें आप लगा रहे हैं, जैसे साहिवाल है, आई मीन प्रोजेक्ट लग रहा है साउथ पंजाब के अंदर कोल के बेस पे, और कोल आ रहा है इंपोर्ट हो गया कराची से, ऑल द वे आप उसको शिप करके लेके जा रहे हैं साहिवाल, कॉस्ट आप कर रहे हैं कोल की ट्रांसपोर्टेशन की साहिवाल, कराची से साहिवाल तक, फिर आप उसको बंद कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा जो जरखेज जमीन है पाकिस्तान की उसको पोल्यूट कर रहे हैं आसपास, जहाँ एग्रीगेरियन हार्टलैंड है बेसिकली, ठीक है। तो वो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कोल की कराची से लेके साहिवाल तक, वो भी हम पे कर रहे हैं टैरिफ के अंदर। आप जो है वो प्लांट भी ज्यादा एक्सपेंसिव है जितना होना चाहिए, और उसके ऊपर आप 20% उनको रिटर्न भी दे रहे हैं। सो इट्स अ बिट, आई मीन इट्स देयर फेलियर्स एट सो मेनी लेवल्स यहाँ पे कि आप किसी एक चीज को नहीं ब्लेम कर सकते। Yes, no, that becomes very frustrating because even if we try to remain emotionally calm in the sense of attributing this to a policy failure, which might have happened because of, maybe the spirit of that time. But as you said, कि उसके बाद इतने ज़्यादा और examples हैं जो policy failures की कि then it starts getting more murky. And there's an element of potentially fraud as well in terms of not monitoring the actual costs of the projects. आपने और शुरू में कमाल साहब आपने इस बात पे इसका जिक्र किया था कि आपके ख्याल में इशू जो है इट्स नॉट अबाउट थेफ्ट, जबकि टिपिकली in a lot of analysis which I've read, people attribute it just because of theft, कि जी वो लाइन लॉसेस हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में फेलियर है और लोग पैसे नहीं देते, तो उसको अगर उसको जब तक फिक्स नहीं करते, जब तक साइक्लिक डेट सॉल्व नहीं हो सकता. Somebody has also asked this question, that do you think privatizing the transmission distribution of electricity will help in this context? Salman, what do you think? देखिए, थेफ्ट ऑब्वियसली इशू है, हम ये नहीं कह रहे इशू नहीं है, थेफ्ट एक इशू है, और थेफ्ट प्राइमरीली दो तीन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में 80% थेफ्ट होती है पाकिस्तान की, वो लाहौर है, कराची है, और आई बिलीव फैसलाबाद है. सो इन ऑल्सो, बट आई थिंक जो थेफ्ट का आंसर है इटसेल्फ, वो कराची इलेक्ट्रिक में जब प्राइवेटाइजेशन हुई है, तो आई थिंक थोड़ा सा थेफ्ट को कंट्रोल किया है ओवर टाइम. सो आई थिंक यू शुड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. बट क्वेश्चन है कि थेफ्ट, क्या चीज़ें थेफ्ट को फीड कर रही हैं. सो एक तो बेसिकली आई थिंक इशू ये है कि एक तो टैरिफ्स हमारे आर हायर देन दे शुड बी. आई थिंक दैट्स आवर प्राइमरी थ्रस्ट हियर. अब टैरिफ बढ़ाते जाओगे, दैट ऑटोमेटिकली आपकी 1-to-1 रिलेशनशिप हो जाएगी विद थेफ्ट. तो अगर आप इफ यू कांट पे फॉर समथिंग यू विल स्टील मोर. तो that's also feeding into the theft issue. बाकी enforcement का issue है, हम ट्रैक नहीं कर पाते कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली कहाँ पे डिस्पैच हुई है विद इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मीटरिंग नहीं हो रही प्रॉपर्ली, डेटा कलेक्शन नहीं हो रही. सो आई थिंक मल्टीपल लेयर्स हैं उस प्रॉब्लम की. सो बट इट्स नॉट ओनली इशू कि हम सिर्फ थेफ्ट को कंट्रोल कर लें किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स की तरह, तो वो हो जाएगा. अगर आप पेट्रोल जो है वो 300 रुपये का कर दो और 100 रुपये से, तो शायद फ्रॉड बढ़ जाएगा. So let me just add to that. देखिए, when we make policies, right? I mean, किस basis के ऊपर policy बनाते हैं, and for whom do you make the policy? Because at the end of the day, the government has a social contract with the people. So because they have a social contract with the people, so, they're supposed to care for the people, which means that certain options are then taken off the table. And so amongst those options can be a method of collective payment, collective punishment. के अंदर वो कोई रीजन से जो है वो ज्यादा नहीं थे. I mean, हर जगह जो है वो ये प्रॉब्लम हो रही थी. उसके बावजूद what we see is that we still have the most expensive electricity. तो हमने उसकी कॉस्ट को जो है वो नीचे लाना है हमने. और
हम अगर कॉस्ट जो है वो बढ़ाते जाएंगे, जो गवर्नमेंट हैज टू पे, तो इंसेंटिव बढ़ता जाएगा चोरी करने का वो बिजली। तो दैट इज नॉट रियली द ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग द कॉस्ट डाउन, ताकि वो जो चोरी करने का है इंसेंटिव, वो भी जो है वो कम हो। ठीक है, चोरी जो है वो नहीं करें, बट दैट इज नॉट रियली द इशू, क्योंकि सारी दुनिया के मुल्कों के अंदर होता है कि अगर एक बेसिक नेसेसिटी है, उसकी अगर आप ट्रू कॉस्ट जो है वो पास ऑन करना शुरू करते हैं, हैविंग लेट द कॉस्ट राइज टू एग्जॉर्बिटेंट लेवल्स, तो लोग सड़कों के ऊपर आ जाएंगे, एक पॉलिटिकल मसला जो है वो आपके लिए बन जाएगा। तो इट गोज बैक टू द अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि आपने उसको एक सस्टेनेबल तरीके से जो है वो सॉल्व करना है। उसके अंदर ये तरीका नहीं हो सकता कि आप जो है वो पूरे इलाकों की बिजलियां उड़ा दें, और ये कि आप एक बहुत ज्यादा महंगी करने दें उनको, और उसके बाद जो है वो ट्रू कॉस्ट पास ऑन करने की कोशिश करें लोगों को। मतलब उनको भी तो बिजली चाहिए ना। हम कुछ लोग जो है वो कहते हैं जनाब कि आप प्रीपेड जो है वो कर दें, जिस बंदे के पास पैसे नहीं उसके पास बिजली भी नहीं। मतलब उसकी वजह से आपके मुल्क के अंदर और बहुत सारे मुआशी और समाजी जो है वो मसाइल क्रिएट होंगे। तो इसको एक किसी तरीके से आप वाइल ऑनरिंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो हुकूमत इज नॉट डूइंग इट्स जॉब। That makes sense. So in your case, in your view, privatizing distribution companies, do you think do you think that will make a major difference? Salman, go ahead. देखें, I think at the end of the day, it all comes back to कि incentive structure क्या बना रहे हैं उसके आप आसपास। So हमने जिस generation में कचमचोला बनाया है, generation is the easiest thing to privatize. जो distribution companies हैं और transmission networks हैं, they're more challenging. उसमें थोड़ा सा national monopoly का आंसर भी आना शुरू हो जाता है। और so I think जो incentive structure, अगर आप if you are privatizing, you have to have the incentive structure aligned in a way कि it's in the interest of the investor to ensure कि overall operational efficiency improve हो, cost of operations कम हो, theft, line losses कम हो। But that if you're incentivizing the investor, then it may work out, but it also depends on the kind of investor you bring in. अब कराची इलेक्ट्रिक में अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमारी अकेली एग्जांपल है प्राइवेटाइजेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में पाकिस्तान में। अब कराची इलेक्ट्रिक के अंदर फॉर द फर्स्ट इनिशियल पीरियड ऑफ आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, अल जुमे वाज द मेन ओनर्स। दे वर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट एनी improvements, major improvements. Or it was only after I think Abraj came in later in the game, जब आपको थोड़ी सी improvements नजर आती हैं line losses के अंदर and so on and so forth. So I think just privatizing for the sake of privatization may not necessarily change anything. And I think वो आपको दोनों examples I think Karachi Electric में for the first couple of years, and then the second part, एक ज़्यादा proactive, hands-on investor might be able to enact more efficiency gains, but it's not necessarily a fait accompli. I mean, you may end up with a poorly run, inefficient, privatized distribution company, as well as the other. No, absolutely. I think one issue, fundamental issue, when a government of Pakistan starts talking about these such contracts, is that it seems that Pakistan has a bad history of giving guaranteed returns and making commitments, which later on they find out that they cannot deliver on. And recently examples of this includes Recotec or the Turkish case tha. So even there's a bad history of us losing international cases in the international markets. So are there any examples of other countries where faced with similar problem, they have been able to resolve it by mutual discussion or something like that? Let me take the liberty of sort of changing the question that you've asked, because I have an eye on the clock and we are running out of time. So one point that I really sort of like to make is कि ये जो policies हैं जो आपने कहा कि how do we make these policies? I mean, so they need, how ambitious are your policies? What is the overall objective of these policies? What should they cumulatively sort of generate?
पिछले हफ्ते के इकोनॉमिस्ट में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था जो आपको पढ़ना चाहिए कि हाउ सैमसंग बेसिकली स्टार्टेड आउट sort of as a shop that used to sell fish and vegetables. और आज जो है वो Samsung probably the sort of only smartphone company that actually gives some competition to Apple. And makes money from smartphones. बाकी सारे तो बेचारे break even ही जो है वो करते हैं. And I mean sort of a world leader in terms of R&D and so on and so forth, and responsible for 20% of South Korea's exports, right? One company. So ये लोग उन्होंने टेक्सटाइल से शुरू किया साउथ कोरिया ने, वो कहाँ से जो है वो कहाँ पहुंच गए हैं. तो हम जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि 30 साल से हम उसी पॉलिसी के ऊपर खड़े हुए हैं. हमारा टेक्सटाइल सेक्टर भी जो है वो वहीं खड़ा हुआ है जहाँ पे जो है वो हमारे यहाँ वो क्यों नहीं होता, ये प्रोग्रेस क्यों नहीं होती. बिकॉज लेट्स कीप द एंड सॉर्ट ऑफ गोल इन माइंड कि हमने तरक्की करनी है, हमने प्रोडक्टिविटी अपनी जो है वो बढ़ानी है, हमने लोगों की कैपेसिटी जो है, टेक्निकल स्किल जो है वो बढ़ानी है. सो एनी पॉलिसी शुड बी डिलीवरिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स. तो इस तरह की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, तो जहां जहां लोगों ने आगे गए हैं, जहां जहां नोकिया स्टार्टेड आउट sort of making rubber boots. So so how have they been able to achieve? They have been able to achieve it exactly the way you have basically said कि एक strong state जो है वो होनी चाहिए. और साउथ कोरिया में उन्होंने अपने जो वो चेबल्स थे उनके साथ मिलके जो है वो काम किया. प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी कि ठीक है, उनको इंसेंटिव्स भी उन्होंने दिए कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको ये नहीं देना पड़ेगा वो, लेकिन इफ यू डोंट परफॉर्म तो वो इंसेंटिव्स आपसे ले लिए जाएंगे. हमारे यहाँ सिर्फ कैरेट अलोन जो है वो पॉलिसी है, स्टिक जो है वो कभी देखने में नहीं आती. सो private sector is an engine for growth. Private sector is sort of very dynamic. I mean ये चीजें तो कार्ल मार्क्स भी मानता था कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो दुनिया में कैपिटलिज्म ही है. तो अगर आपने प्रोडक्टिविटी जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो बढ़ानी है, तो आपको एक पॉलिसीज इस तरह की बनानी पड़ेंगी which actually sort of create or create regulations that actually sort of lead to those bigger results जो आपको जो है वो चाहिए. लेकिन हमारे यहाँ इतनी एम्बिशन के साथ ये पॉलिसीज ये sort of one off पॉलिसीज जो है वो बना के छोड़ दी जाती हैं. So we turn sort of these things into rent seeking rackets. So I mean just to add to what Kamal bhai is saying, the essentially ये तो हमें नुकसान हो ही गया कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रीजन हाईएस्ट है और नुकसान हर किस्म के सेक्टर के ऊपर पड़ रहा है. बट एट द सेम टाइम जो हमारा, अगर पाकिस्तान में आज आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आसान तरीका ये कि आप सब कुछ भूल जाएं, कोई रिस्क ना लें, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सर्टेन सेक्टर में डाल दें और आपकी गारंटीड रिटर्न्स आ रहे हैं. एट द सेम टाइम सो आप इफेक्टिवली जो कैपिटल है प्रोडक्टिव वो आपके एक सर्टेन सेक्टर में जा रहा है, इफेक्टिवली रेंट सीकिंग एक बन गई उसके अंदर. नंबर 2, हमने लॉक कर दिया अपने आप को लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एट सर्टेन रेट्स. और मसला ये है कि ओवर टाइम टेक्नोलॉजी बदल रही है, ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट्स भी आ रहे हैं और हम जो है फंसे हुए हैं परपेचुअली इन टेक्नोलॉजीज जो हम रिटायर नहीं कर सकते हमको, बिकॉज हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स में कैपेबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. सो हम लॉन्ग टर्म हम नई टेक्नोलॉजी भी नहीं ला सकते to replace over time some of these plants before the life finishes. और at the same time हम जो है productive capital जो हमारा economy का वो real estate और certain sectors से आगे निकल नहीं रहा. No, thank you so much for your time. It is indeed a bad catch-22 for the government. And as Kamal Saab said, that China is also a great model for backing winners and then making them compete with each other. But it seems that, as you said, Pakistan, we give those incentives, but then we don't encourage competition. So there is no punishment for failure, I suppose, from that perspective. And so that's why it delves into more of a monopoly creation. Thank you so much for your time. We had more than 100 people. We will record. This was recorded, and we will share this on our website and also on our LinkedIn and Facebook pages. And Kamal Saab and Salman Saab's paper, I had already shared it with a lot of you, but it is also available online. And if Dr. Kamal and Salman Saab allow, I'll also share it on the LinkedIn and Facebook
absolutely. Yeah. All right. Thank you. All right. Thank you very much, Ali, Thank you. for giving us this opportunity. Yeah.